Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. Meoch! Cried Ink, and ooh! Cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Dragon, how old are you? अभी तक तो तुम एक बच्चे ही हो, क्योंकि तुमको एक केज चाहिए, इसलिए ये लोग ऐसे ऐसे बोल के उसको चिढ़ाते रहते थे। बोलता था वीक वीक वीक, ऐसे बोल के उसको लाफिंग लाइक दैट। कावर्ड था, और ये पर्सिबल तो काफी बहादुर योद्धा था, बट बेसिकली यही तो चिढ़ाने का मतलब हुआ ना। चिढ़ाते हम लोग क्या चीज है, उल्टा बोल के हमेशा चिढ़ाते। वो एक कॉवर्ड था, तो इसलिए उसको बहुत तो पर्सिबल ऐसे बोल के उसको चिढ़ाते थे। कहने का मतलब जैसे कि कोई बहुत खराब बैटिंग करता हो और उसको और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए बात होता है सचिन तेंदुलकर हो, ऐसे बोलो। Students, so today we will read a poem from your first flight book for the students of CBSE class 10. The name of the poem is basically The Tale of Custard, the Dragon, written by Ogden Nash. It is a ballad poem. Ballad is something that narrates you a story. Ballad poem वैसी poem होती है जो अपने आप में ही एक कहानी सुनाती है, और ये poem आपका लिखा हुआ है Ogden Nash। For students, let's see the introduction of the poem. In this poem, this is a basically light-hearted poem. We would see a little girl whose name is Belinda, and she lives in a small white house with some of her pet animals. This poem has been written in a light-hearted note. This is a humorous poem. ये एक humorous, light-hearted, childish poem है, but it has a bit of message also, and the standard of language is also up to the class 10. So let's read. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon. So student, in the first stanza and in the first line itself, the main character, the lead character of the poet has been introduced, whose name is Belinda, and Belinda is the little girl who live in a white house. वो इस अपने छोटे से एक white घर में रहती है Belinda, and with whom she lives with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon. So in her house there is a kitten which is black in color, there is a mouse which is little and grey in color, the kitten is also little, and there is a dog, a little dog which is yellow in color, and then there is a little red wagon. So what is a wagon, student? This is a wagon that you are seeing here in the picture. Wagon जो है वो student हम लोग लकड़ी गाड़ी को बोलते हैं, काठ गाड़ी। And but you know the surprising thing here is that in her house there is a really truly little pet dragon. So in her house there is a dragon also, and it is a pet dragon. So first and foremost, the first question that would come to your mind, how is it possible, or can a dragon be a pet? क्या ड्रैगन को हम लोग पेट बना के अपने घर में रख सकते हैं? एंड दैट टू कि एक छोटी सी लड़की अकेले एक घर में रह रही है और उसके घर में उसके साथ सारे एनिमल्स हैं। इट मीन्स टू से दैट कि आपको फर्स्ट एंड फॉल जो बात पता चलेगी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ या गार्जियन के साथ नहीं रह रही है, किसी भी ह्यूमंस के साथ नहीं रह रही है, और उसके घर में जो है वो एक लिटिल पेट ड्रैगन है, एक डॉग है येलो कलर का, एक माउस है ग्रे कलर का, एक बैगन है रेड कलर का यानी गाड़ी है, काठ गाड़ी, और एक कैट भी है। सब लिटिल हैं सब, और सबके अलग अलग कलर यहाँ पे मेंशन हुआ है। Look at here student, this picture, this she is Belinda and she is her kitten, cat, and इसमें आपका माउस भी है, और ये डॉग है येलो कलर का, लिटिल येलो डॉग। Students, many students get confused here in the word realio trulio. Look at the pronunciation of these two words is realio and trulio. This word is real and this word is true, and poet ने deliberately उसने इस word को modify करके लिखा है real को और true को, to emphasize, इस बात को जोर दे के बोलने के लिए कि हाँ सचमुच में उसके पास एक लिटिल पेट ड्रैगन था, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। इस बात को जोर दे के बोलने के लिए ही बस उसने यहाँ पे रियल वर्ड को रीलियो करके लिखा है एंड ट्रू वर्ड को ट्रूलियो करके लिखा है, टू एम्फेसाइज ऑन द फैक्ट दैट शी हैड अ ड्रैगन इन हर हाउस एज अ पेट एनिमल। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as a mustard, but the dragon was a coward,
and she called him Custard. We are seeing the names of all those animals who were living with Belinda. The name of the licked black kitten was Ink. देखो black kitten जो छोटी सी black कलर की बिल्ली थी उसका नाम Ink था. And little grey mouse was named as Blink. जो लिटिल ग्रे माउस था उसका नाम ब्लिंक था. एंड जो लिटिल येलो डॉग था उसका नाम मस्टर्ड था. एंड जो ड्रैगन था वो कॉवर्ड था. एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. ड्रैगन का नाम उसने जो है वो कस्टर्ड रखी हुई थी. एंड सरप्राइजिंगली ड्रैगन वॉज कॉवर्ड. This word does not mean anything. This is just the name of the dragon that has been used here in this poem. And students, meaning of the word coward is timid, as you all might have know. Now let's read the third stanza. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. So student, in this stanza the custard dragon has been described. अभी आपको custard the dragon को describe किया जा रहा है कि बेलिंडा के घर में जो उसने अपना एक पेट ड्रैगन रखी हुई थी, वो जो ड्रैगन था उसके बिग शार्प टीथ थे. ऑफ कोर्स इट वाज अ ड्रैगन, सो इट वुड डेफिनेटली हैव बिग शार्प टीथ. एंड इट हैज स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम. उसके बॉडी के टॉप पे स्पाइक्स था. ये देखो, ये यहाँ पे ये जो निकला हुआ है आपका, ये स्पाइक्स होता है. आई होप मोस्ट ऑफ यू वुड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पाइक. एंड उसके बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट था, जो पेट वाला पार्ट होता है, जो ड्रैगन लोगों का नीचे रहता है. जो भी एनिमल्स हैं जो 4 फुटेड एनिमल्स होते हैं उनका तो नीचे रहता है, अंडरनीथ. सो उसके बॉडी के अंडरनीथ पे जो है वो आपका क्या था, स्केल्स था. सो व्हाट डज द वर्ड स्केल मीन्स टू से दैट स्टूडेंट, यू ऑल वुड हैव सीन फिशेस. एंड आपके घर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर पे फिश बनता होगा. जब आप फिश बनाते हो तो उस समय आप यह ध्यान देते होगे कि उसके बॉडी पे जो स्केल्स रहते हैं, च्योंटा, उसको छिल के हटाया जाता है. सो इसके बॉडी के नीचे भी आपका स्केल्स था. इस पिक्चर में नहीं है, इस फोटो में नहीं है, बट यहाँ पे है. देखो, ये जो है इसके अंडरनीथ ऑफ हिज बेली, इसके बेली के नीचे जो ये है, यही आपका स्केल्स है. दैट इज एक्चुअली नोन एज स्केल्स. एंड व्हाट काइंड ऑफ द माउथ ड्रैगन हैज? द माउथ ऑफ द ड्रैगन वाज लाइक अ फायर प्लेस. इट मीन्स इट प्रोड्यूसेस हॉट एयर. उसमें से गरम गरम हवा निकलती थी. मतलब एज यू ऑलरेडी हर्ड इन मैनी फेरी टेल्स कि ड्रैगन्स ऐसे एनिमल्स होते थे जिनके मुंह से फायर निकलता था, आग निकलता था. But students, I would like to ask you a question here. What do you think? Do dragon existed in real in past time, or it has extinct now, or it never used to exist? कभी इसका existence नहीं था. It has always been an imaginary creature. That's what you have to answer. In my opinion, this existed in the past time, but now they have extinct. But about whatever the stories that goes on about dragon, that their mouth produces fire, there shouldn't be any reality about that. So of course जब उसके मुंह से फायर निकलेगा, और उसका मुंह अगर फायर प्लेस से यहाँ पे कंपेयर किया गया है आपका, तो ऑफ कोर्स जो है वो चिमनी भी तो होना चाहिए कहीं, क्योंकि कहीं जहाँ कहीं भी आपका फायर जलता है तो फ्लेम्स तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रोड्यूस होता ही, आपका धुआं तो ऑब्वियसली निकलेगा ही. तो धुआं जो निकलने वाला जगह होता है उसको हम लोग चिमनी बोलते हैं. तो इसके मुंह में अगर फायर बनेगा तो धुआं किधर से निकलेगा, फ्लेम किधर से निकलेगा? तो फ्लेम जो है इसका नोज से निकलता था. सो हिज माउथ वॉज लाइक अ फायर प्लेस एंड हिज नोज वॉज लाइक अ चिमनी. एंड इट हैज़ रियल ट्रू डैगर्स ऑन हिज टोज. अभी देखो, इसके जो टोज थे, यानी कि पैरों की उंगली, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अभी आप पैरों की इसकी उंगली देख रहे हो, फिंगर्स, टोज, ये जो है वो आपके डैगर्स की तरह थे. अभी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डैगर्स? डैगर्स मीन्स टू से स्टूडेंट जो आपके खंजर होते हैं, जो स्मॉल सोड होता है, चाकू, नाइफ. तो इसके जो टोज थे इस ड्रैगन के, ये नाइफ के जैसे थे. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा. Belinda was as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case. So basically now we are seeing a description of all those persons who were living in the Belinda's house. So Belinda was a very brave girl, and she was as brave as a barrel full of beer. What does the phrase a barrel full of beer means to say? ये जो phrase है a barrel full of beer, इसका क्या मतलब होता है? It means fearless without any anxiety. Someone who is very fearless, who doesn't care about anything, who does not have any tension or anxieties.
is actually, you can call them as a barrel full of beer. So बेलिंडा एक बहुत ही ब्रेव लड़की थी, उसको किसी भी चीज का डर फिक्र चिंता नहीं होता था. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स. और इंक और ब्लिंक भी काफी ब्रेव थे. ये लोग इतने ब्रेव थे, दे वर सो ब्रेव दैट दे कैन चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स. मतलब वो लोग लायंस को भी खदेड़ सकते थे. दे वर सो ब्रेव, इंक एंड ब्लिंक. एंड हु द इंक एंड ब्लिंक आर हियर? इंक इज बेसिकली cat and blink is basically mouse. So you will keep the names in mind. It would help you in answering the question also from this poem. Mustard was as brave as a tiger in a race. अभी देखो जो mustard dog था येलो कलर वाला छोटा सा, वो भी काफी ब्रेव था. एंड हाउ ब्रेव इट वॉज? ही वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर. अब उसके ब्रेवरी को जो है वो आपका टाइगर से कंपेयर किया जाता था. और ये नॉर्मली उतना ब्रेव नहीं होता था, बट वेन एवर ही गेट्स एंग्री, जब वो रेज में आ जाता था. स्टूडेंट, रेज मीन्स टू से दैट एंगर, कि जब वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता था तब वो टाइगर जितना बहादुर हो जाता था. स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम देयर आर नॉट सो मेनी हार्ड वर्ड्स. Most of the words you might be aware of, so I have not written the meaning of all those words, but I would explain you while explaining the stanza. So rage is a simple word which means anger, कि एक बार जब उसके डॉग को गुस्सा आ जाता था तो टाइगर जितना बहादुर हो सकता था. बट कस्टर्ड, जो कि ड्रैगन था आपका, कस्टर्ड द ड्रैगन ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केस. बट जो ये कस्टर्ड जो ड्रैगन था, जिसको आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि बहादुर तो उसको होना चाहिए, ऑफकोर्स वो ड्रैगन है. और कैट और माउस ये लोग बहादुर कैसे हो सकते हैं? बट बेसिकली कस्टर्ड जो है वो आपका कॉवर्ड था. वो आपको सेकेंड स्टेंजा में ही लिखा हुआ है. एंड ही ऑलवेज क्राइज फॉर अ नाइस सेफ केज. और वो हमेशा ही बस केज के अंदर जो है वो रहना चाहता था. ये आपका कस्टर्ड. स्टूडेंट, यू कैन से दैट इन क्लास 10 what kind of a childish poem has been given, as we are seeing a cat and a mouse are living together. How is it possible? But more importantly, how is it possible that you are having a dragon in your house as a pet, and that too when the house only one little girl lives, जहाँ पे कोई बड़े लोग भी नहीं रहते हैं, सिर्फ एक छोटी लड़की रहती है, और उस घर में एक ड्रैगन पेट है. ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है. और ये तो सरप्राइजिंग है ही कि कैट और माउस दोनों एक साथ रह रहे हैं, एंड डॉग भी रह रहा है. एंड यू नो ये बैरल फुल ऑफ बियर वर्ड फ्रेज तो क्या दिखाता है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ. ये बैरल है. इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैरल, और बैरल के अंदर जो है ये देखो ये बियर है, तो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए मैंने ये एक आपको फोटो दिया है कि जब आप काफी बहादुर हो, ये फ्रेज का मतलब होता है बैरल फुल ऑफ बियर. नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा. बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, blink and mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. So basically now what all of them, how all of them used to behave with dragon, that's what we would see in this stanza. बेलिंडा जो है वो आपको ड्रैगन को बहुत ज़्यादा टिकल्ड करती है. देखो ये जो हिम है, दिस हिम इज बेसिकली रेफरिंग टू ड्रैगन. एंड सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल. उसको बहुत ज़्यादा वो टिकलिंग करती थी. यू इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड टिकल, टिकल मीन्स टू से स्टूडेंट लाइटली टच और प्रॉड. यू नो सिंपल भाषा में गुदगुदी लगाना, हिंदी में आप जानते हो उसका मीनिंग. एंड ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिबल. अब ये जो ब्लिंक था माउस और जो मस्टर्ड था डॉग, ये दोनों उसको बहुत ही रूड वे में पर्सिबल बोल के चिढ़ाते रहते थे. बिकॉज वो देखो अभी आपका जो ड्रैगन था वो कॉवर्ड था, बट उसको उसके अपोजिट तरह के पर्सन से उसको चिढ़ाया जाता था. तुम तो पर्सिबल हो, तुम तो पर्सिबल हो, ऐसे बोल के उसको चिढ़ाते थे, ये दिखाने के लिए कि तुम कोई सचमुच में बहादुर नहीं हो. दैट्स व्हाट इट मीन्स टू से. बिकॉज जो पर्सिबल था ना, इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, इट इज़ द नेम ऑफ अ नाइट, KNIGST वाला नाइट, एंड ही इज़ द पर्सिबल. लुक एट हियर, इसी पर्सन का नाम था पर्सिबल, ये उसका रियल पिक है. और ये जो पर्सिबल था ये आपका किंग आर्थर के कोर्ट का एक नाइट था. KNIGST योद्धा, वॉरियर, एक बहुत ही ब्रेव वॉरियर माना जाता था. और ये थे हमारे किंग आर्थर, एंड ही वॉज अ वेरी फेमस किंग ऑफ ब्रिटेन इन ओल्डन टाइम. ये एक पास्ट टाइम एंसेंट टाइम में ब्रिटेन के किंग हुआ करते थे, किंग आर्थर. और उन्हीं के सेना में ये एक नाइट था, वॉरियर था, जिसका नाम था पर्सिबल. ये काफ़ी ब्रेव हुआ करता था. बट आप बोलोगे कि ड्रैगन तो कॉवर्ड था,
यू वुड से दैट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। सो इसको पर्सिबल बोल के क्यों वो लोग चिढ़ाते थे, क्योंकि ये तो कावर्ड था और ये पर्सिबल तो काफी बहादुर योद्धा था। बट बेसिकली यही तो चिढ़ाने का मतलब हुआ ना, चिढ़ाते हम लोग क्या चीज है, उल्टा बोल के हमेशा चिढ़ाते। वो एक कावर्ड था तो इसलिए उसको तो पर्सिबल ऐसे बोल के उसको चिढ़ाते थे। कहने का मतलब जैसे कि कोई बहुत खराब बैटिंग करता हो और उसको और ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए बात सचिन तेंदुलकर हो ऐसे बोलो, तो ये आप समझ सकते हो उसको क्यों ये मस्टर्ड जो डॉग था और जो ब्लिंक माउस था वो दोनों उसको ऐसे बोल के चिढ़ाते थे, और इसीलिए पोएट ने उसको रूडली वर्ड यहाँ पे यूज किया हुआ है। They all sat laughing in the little red wagon at the Rulio Trulio cowardly dragon। देखो ये सभी लोग अपने ये वैगन में बैठ जाते थे और इस पे बैठ के इस बेचारे ड्रैगन का जो कि कॉवर्ड था उसका मजाक उड़ाते रहते थे, तो उस पे हंसते रहते थे। यू नो दे ऑल यूज टू लाफ एट हिम बाय सिटिंग इन दिस वैगन एंड मेकिंग फन ऑफ हिम। नाउ लेट्स रीड। देखो यहाँ पे रिलियो ट्रूलियो वर्ड अगेन हैज बीन यूज्ड टू एम्फेसाइज, जोर देके इस बात को बोला गया है कि हाँ सचमुच में वो ड्रैगन था और वो कॉवर्डली भी था, बिकॉज समवन वुड फील दैट कि हाउ इज इट पॉसिबल। तो इस बात को पोएट बहुत ही जोर देके बार बार बोलना चाहता है, दैट इज व्हाई ही हैज ऑलवेज यूज्ड रियली और ट्रूली। बेलिंडा giggled till she shook the house and Blink said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, then Custard cried for a nice safe case। सो बेसिकली बेलिंडा जो है वो मतलब अभी जो आप लास्ट लाइन में देखे प्रीवियस स्टैंजा की कि वो लोग जो है उसका बहुत ज़्यादा हंसी उड़ाते थे, वो लोग हंसते रहते थे अपने बैगन में बैठ के ड्रैगन के ऊपर। तो बेलिंडा जो है वो कैसे हंसती थी, बेलिंडा जो है वो खिलखिलाती रहती थी, वो इतनी जोर जोर से हंसती थी कि पूरे घर को हिला के रख देती थी। इट मीन्स वो जैसे बोला जाता है ना कि उसको इतना हल्ला करती है कि पूरे घर को जो है वो सिर पे उठा के रखती है, तो वही वाला सिचुएशन है यहाँ पे। किसी गीगल टिल सी सूक द हाउस। अभी गीगल मीन्स होता है स्टूडेंट खिलखिलाना, जैसे ऐसे करके हंसना, यू नो लाफिंग लाइक दैट इज बेसिकली नोन एज गिगलिंग। एंड ब्लिंक सेड वीक वीक। अभी देखो ये जो ब्लिंक था यानी कि जो माउस था, अभी ये वीक वीक को किसको बोल रहा है, ये वो बोल रहा था आपको ड्रैगन को, और ये ड्रैगन को वीक वीक बोल के चिढ़ा रहा है। अभी यहाँ पे जो वीक है आपका स्टूडेंट, ये WEA के वीक को रेफर कर रहा है, बट वो मिस स्पेल्ड करके लिखा गया है, बिकॉज दिस वीक इज बेसिकली यू नो द साउंड मेड बाय द माउस। ये माउस जो है वो साउंड एक निकालता था अपने मुंह से टू टीज द ड्रैगन, ड्रैगन को चिढ़ाने के लिए, और उसको बोलता था वीक वीक वीक, ऐसे बोल के उसको चिढ़ाने की कोशिश करता था। दैट्स व्हाट इट मीन्स टू से विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और इस बात से जो माउस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपका गिगलिंग करता था, उसके बाद यू नो वो भी ही करके हंसता था। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। और जो इंक थे कैट और जो मस्टर्ड था डॉग, ये दोनों आपका उससे एज उसके पूछते रहता था ड्रैगन से। वाओ ड्रैगन हाउ ओल्ड आर यू, अभी तक तो तुम एक बच्चे ही हो क्योंकि तुमको एक केज चाहिए, इसलिए ये लोग ऐसे ऐसे बोल के उसको चिढ़ाते रहते थे। एंड देन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। मतलब जब भी कस्टर्ड इस से ये अपने केस के लिए रोता था कि उसको केज में रहना है, मुझे केज में रहना है, मुझे केज में रहना है, बिकॉज ही वॉन्ट सेफ्टी, ही डज नॉट वॉन्ट एनी threat over him. So that is why he used to cry for a nice safe case, and whenever he used to cry for a nice safe case, the mustard and ink used to make fun of him by asking his age। वाओ तुम तो भाई बच्चे ही हो, कितने ओल्ड हो, तुमको भी केज चाहिए, इसके लिए वो लोग ऐसे बोलते थे। Now let's read the next stanza। Suddenly they heard a nasty sound and mustard growled and they all looked around। Meoch! cried Ink, and ooh! cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window। So basically अभी सडनली स्टूडेंट्स अचानक से क्या हो जाते हैं कि उन लोगों को एक nasty साउंड जो है वो सुनाई देता है। What does the word nasty means to say? Very bad or unpleasant। So they heard a very bad and unpleasant sound and mustard growled। अभी mustard जो है उस आवाज को सुन के क्या करता है, mustard कौन है, mustard ये येलो डॉग है, और ये मस्टर्ड उस साउंड को सुन के जो बाहर से उसको आवाज सुनाई दी है नैस्टी साउंड, उस नैस्टी साउंड को सुन के उसका पहला रिएक्शन क्या हुआ है, ये डॉग का ये ग्रॉलिंग किया है। व्हाट इज द ग्रॉलिंग ऑफ एन एनिमल स्पेशली अ डॉग मेक अ लो गटरल साउंड इन द थ्रोट। तो ये डॉग लोग जो ग्रॉलिंग साउंड निकालते हैं अपने गले से ऐसे ऐसे करके, तो वो ग्रॉलिंग किया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सब लोगों ने पीछे मुड़ के देखा कि क्या आवाज आ रही है, और पीछे जैसे ही देख के मुड़ा कि ये जो इंक कैट है ये जो है वो आपका आवाज निकालती है मुंह से म्यूच। एज यू ऑल नो कि कैट लोग कैसे आवाज निकालते हैं, म्याऊ म्याऊ, तो वही वैसे आवाज निकाला हो।
एंड बेलिंडा जो है वो क्या बोल के चीखी, बेलिंडा आपको ये बोल के चीखी ओ। एंड और वो लोग किस बात के लिए इतना डर रहे हैं और किस बात के लिए उनके मुंह से ऐसी चीखें निकल रही है, बिकॉज देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो, क्योंकि विंडो से देखो उनके घर का जो विंडो है उस ये जो विंडो है इस विंडो से एक पायरेट जो है उन लोगों के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। नाउ हु इज अ पायरेट, पायरेट स्टूडेंट इज जनरली जो आपको रॉब करते हैं लूटते हैं समुद्र में, समुद्री लुटेरे को पायरेट बोलते हैं। यहाँ पे ये आपका हाउस ब्रेकर हो गया, एक वर्गलर हो गया, दैट्स व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड पायरेट हियर। यहाँ पे सिंपली आप उसको एक लुटेरे की तरह समझ सकते हो। वो जो है वो यहाँ पे बिंडा वर्ड को जानबूझ के आपको वेलिंडा के साथ राइम कराने के लिए रॉन्गली स्पेल्ड करके पोएट ने लिखा है। दिस इज नोन एज पोएटिकल लाइसेंस। पोएट लोग ऐसा कर सकते हैं, वो लोग किसी भी वर्ड को जो है वो रॉन्गली मिस स्पेल्ड भी कर सकते हैं टू मेक इट राइम विथ सम अदर वर्ड, किसी और वर्ड को उसके साथ राइम कराने के लिए। विंडा को विलिंडा के साथ राइम कराने के लिए पोएट ने विंडो को विंडा करके लिखा है। एंड एक्चुअली पोएट जो है वो विंडो लिखना चाहते हैं बट वो विंडो बेलिंडा के साथ राइम नहीं करता, तो इसीलिए उसको उन्होंने विंडा बोल दिया है। तो ये पायलट आपका किधर से आ रहा है, ये पायलट जो है वो आपका विंडो से आ रहा है घर के अंदर, और इसी को देख के ये लोग इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस फर्दर इन द नेक्स्ट स्टैंजा। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. So basically student, you know, in this stanza the pirate has been described, pirate को describe किया हुआ है। pirate के दोनों हाथ में पिस्टल था। Look at here like this, he has pistol in left hand also, in right hand also, in both of his hands hold a pistol, and उसके दांतों में उसने एक कटलास दबा के रखा था, ऐसे जैसे ये दांतों में कटलास दबा के रखा हुआ है। कटलास क्या होता है, शॉर्ट सोर्ड विथ अ स्लाइटली कर्व्ड ब्लेड फॉर्मली यूज्ड बाय सेलर्स। तो सेलर्स लोग जो है वो रस्सी को काटने के लिए या किसी चीज़ में ये खंजर, इसको हम लोग कटलस बोलते हैं, और ये कटलस काफ़ी ब्राइट था, ये पूरा धाड़ वाला था। सो दैट इज़ वाई। और ये कटलस पायरेट कहाँ पे दबा के रखे हुए था, अपने दांतों में, और उसके दोनों ही हाथ में पिस्टल था। His beard was black, one leg was wood। अभी उसका बियर्ड जो है वो आपको ब्लैक था, यहाँ पे ब्लैक बियर्ड वाला मुझे कोई फोटो मिला नहीं था। सो एंड वन लेग वॉज वुड, और एक लेग जो था इस बेचारे पायरेट का, ये उसमें लकड़ी लगा हुआ था। नो वी कैन अज्यूम दैट बिकॉज ही वॉज अ पायरेट, तो बहुत बार पकड़ा गया होगा, कुछ मिसहैप्स उसके साथ हुए होंगे जिसकी वजह से उसका पैर कट गया होगा। तो अभी वो अपने एक नेचुरल लेग की जगह पे एक वुड का लेग लगा के रखा हुआ है, एंड उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड। Now let's read the next stanza. Belinda paled and she cried, "Help! Help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse Blink strategically mousehold. So basically students, now we are seeing the reaction of all the animals and Belinda herself in her house. अभी इस पायरेट को देख के सब लोग क्या करते हैं वो हम लोग देखेंगे। बेलिंडा का चेहरे का रंग उतर गया उस पायरेट को देख के, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। पेल मीन्स स्टूडेंट होता है टर्न येलो ड्यू टू फियर। एंड व्हाट डिड शी क्राई? Of course, in these sort of situations, what do we cry? We generally cry for help. So she also cried, Belinda also cried, "Help! Help!" But Mustard fled with a terrified yelp. But Mustard के मुंह से जो है, Mustard जो डॉग था उसके मुंह से एक बहुत ही डरावना चीख निकला। Terrified means fearful and yelp means short cry. एंड वो बिल्कुल ही घर के हाउस होल्ड में जाके छुप गया। ही ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि वो घर के सबसे निचले पार्ट में कहीं जाके छुप गया। ट्रिकल वर्ड स्टूडेंट यहाँ पे यूज हुआ है भागने के लिए, कि वो वहां पे डर से भाग गया, ट्रिकल डाउन हो गया, धीरे धीरे जो है वो घर के नीचे चला गया किसी तरह से। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो छोटा सा माउस था ग्रे कलर का जिसका नाम ब्लिंक था, वो भी जो है वो जानबूझ के डेलिबरेटली प्लानिंग के तहत जो है वो आपको अपने बिल में घुस गया, माउस होल्ड हो गया। स्ट्रेटेजिकली मीन्स स्टूडेंट विथ प्लानिंग, प्लानिंग करके वो माउस होल्ड अपने होल में चला गया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजियन। With a clatter and a clank and a jangling scum, he went at the pirate like a robin at a worm. But in this sort of situation, when all those clay and brave
पर्सन्स ऑफ ब्लिंडास हाउस। ब्लिंडा के घर में जितने भी एनिमल्स थे और ब्लिंडा हर्स्टेल भी काफ़ी बहादुर थे, बट पायरेट को देख के उनकी सारी बहादुरी धड़ी की धड़ी रह गई और उनकी सारी बहादुरी निकल गई। आप पिछले स्टैंजा में देख चुके हो कि कैसे ब्लिंडा का चेहरे का रंग उड़ गया, वहाँ से कैट भी भाग खड़ा हुआ, डॉग भी भाग खड़ा हुआ, माउस भी अपने माउस होल में चला गया। और बट इस कंडीशन में जो ड्रैगन था, जो अभी तक कॉवर्ड माना जाता था, वो जो है वो जंप करके सामने आया एंड ही वॉज स्नोटिंग लाइक एन इंजन। अभी स्नोटिंग मीन्स स्टूडेंट होता है मेक अ सडन एक्सप्लोजिव साउंड थ्रू वंस नोज, यानी बिल्कुल गुर्राते हुए ऐसे करते हुए इंजन की तरह। इंजन ही ऐसे करता है जनरली, जो बाइक या कार का इंजन होता है, आप जानते हो कैसे करते हैं वो, तो इंजन की तरह जो है वो स्नॉटिंग करते हुए बिल्कुल जंप किया और वो अपने टेल को इस तरह से घुमा रहा था। उस दीवारें, वॉल्स, जो घर के वॉल्स थे उससे उसकी दीवार ऐसे टकरा रही थी। यहाँ पे स्टूडेंट क्लैश वर्ड का मतलब है टकराना। जो ये ड्रैगन का टेल था ये दीवार से ऐसे टकरा रही थी जैसे कि कोई डंजियन में जो आयरन गेट होता है उससे आयरन टकरा रहा हो, टन टन की आवाज के साथ उसका टेल जो है वो टकरा रहा था वॉल्स के साथ। देखो अभी ये एक डंजियन का फोटो है। डंजियन में होता है स्टूडेंट तह खाना, और तह खाने में यानी कि अंडरग्राउंड फ्लोर में, अंडरग्राउंड रूम में जो पुराने ज़माने में आपका प्रिजन होता था उसको डंजियन बोलते थे, अंडरग्राउंड प्रिजन। और इस डंजियन में जो लोहे का गेट होता था, अगर आप उस लोहे के गेट पे अगर आयरन से टन टन करके मारोगे, जैसे पुराने ज़माने में आप फिल्मों में देखे होंगे, तो वैसा जो साउंड प्रोड्यूस होता था, क्लैटरिंग का साउंड और क्लैंग का साउंड। अभी क्लैटरिंग और क्लैंग दोनों साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड्स हैं, ये साउंड डिनोटिंग वर्ड हैं जो आपको ये दिखाते हैं साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर। सो बेसिकली डंजियन में जिस तरह का आवाज़ निकलता लोहे के गेट पे आयरन को मारने से, कोई लोहे का पीस मारने से लोहे के गेट पे जो जोरदार आवाज़ निकलता टन टन का, वैसा ही आवाज़ जो है वो अभी ये जो ड्रैगन है ये अपना जो टेल आपको घुमा रहा है उसका दीवार में टकराने से आवाज़ निकल रहा है। एंड जैंगलिंग स्कर्म, और ये जो आपका ड्रैगन है ये बहुत ही जैंगलिंग साउंड प्रोड्यूस करके अपने बॉडी को स्कर्म करा रहा है। जैंगलिंग मीन्स होता है स्टूडेंट मेक और कॉज टू मेक अ रिंगिंग मेटालिक साउंड, यानी कि पूरा का पूरा एकदम रिंगिंग आवाज़ निकल रहा था, उस इतना वायलेंट हो गया था आपका ड्रैगन। और उसका पूरा जो बॉडी है वो अभी स्कर्म कर रहा था। अभी स्कर्म करने का मतलब होता है कि पूरा वो अपने बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न कर लिया था, अपने टेल को भी और अपने पूरे बॉडी को भी। स्कर्म मीन्स होता है स्टूडेंट रीगल और ट्विस्ट द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड, स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ नर्वसनेस और डिस्कम्फर्ट। तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा एंगर और वायलेंट होकर यहाँ पे ऐसा कर रहा था, उसको डिस्कम्फर्ट तो फील नहीं हो रहा था, बट वो बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखाने के लिए ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया कि जो ये आपका ड्रैगन है ये अपने पूरे बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे हैं ऐसे ऐसे, और वो जो है वो सांप की तरह, स्नेक की तरह, और बिल्कुल अटैक करने वाला है उसके ऊपर। उसके जो टेल्स हैं वो घर के दीवारों से टकरा रहे हैं और क्लैटर और क्लैंक साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि डंजियन के अंदर आयरन गेट पे आयरन पटकने से जो आवाज़ निकलेगा उस तरह से आवाज़ निकल रहा है। एंड हाउ डिड ही अटैक ऑन द पायरेट, जो घर में लुटेरा आया था उसके ऊपर उसने कैसे अटैक किया? ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म। अभी यहाँ पे सिमिली का यूज हुआ है, और जो ड्रैगन का रिएक्शन है पायरेट के ऊपर, उस रिएक्शन को रॉबिन बर्ड जैसे किसी वॉर्म के ऊपर अटैक करता है उससे कंपेयर करके पोएट दिखा रहे हैं। अभी रॉबिन स्टूडेंट जो है वो एक बर्ड का नाम है, इस बर्ड का नाम है आपका रॉबिन, और ये जो है वो ऑफ कोर्स इंसेक्टिवोरस बर्ड्स मोस्टली होते ही हैं। तो ये जैसे वॉर्म के ऊपर, ये वॉर्म है, वॉर्म के ऊपर जैसे अटैक करता है वैसे ड्रैगन ने पायरेट के ऊपर अटैक किया। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टैंजा। पायरेट gaped at Valinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. बट ये जो पायरेट है ये बेलिंडा के ड्रैगन को देख के बिल्कुल शॉक हो गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। स्टूडेंट गेप मींस होता है व्हेन यू आर वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज, तब आपका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सो ही बिकेम वेरी नर्वस एंड ही गॉट वेरी afraid also, he got very scared also, so he gulped some grog from his pocket flagon. तो उसने अपने पॉकेट में से एक फ्लैगन निकाला। देखो इसको हम लोग फ्लैगन बोलते हैं। फ्लैगन एक छोटा सा कंटेनर होता है। You can check here the meaning of all the hard words.
So grog, flagon is basically a large container in which drink is served. So this is a flagon. So he took out a flagon from his pocket and he gulped some grog. Gulp means क्या होता है स्टूडेंट? swallow, निगल जाना, मतलब अब पीना. उसने जो है अपने पॉकेट में से फ्लैगन निकाला और उस फ्लैगन में से जो है वो ग्रॉग पिया. अभी ग्रॉग क्या होता है स्टूडेंट? ग्रॉग जो है वो जनरली आपका स्प्रिट होता है मिक्स्ड विथ वाटर, जिसमें आप पहले से ही वाटर मिक्स करके रखते हो. अभी जैसे इस बोतल के अंदर मान के चलो उसने रम डाल दिया होगा और रम में पहले से ही वाटर मिक्स करके रखा होगा. एंड ही फायर 2 बुलेट्स. और उसके हाथ में जो दोनों हाथ में पिस्टल था, विच यू हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंजास. सो उसने जो है वो बुलेट फायर किया ड्रैगन के ऊपर, बट दोज बुलेट्स डिडंट हिट द ड्रैगन एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट. सो बेसिकली देखो, अभी ये जो पायरेट है इसने बुलेट्स भी चलाया, ही फायर 2 बुलेट्स एट द ड्रैगन, बट वो दोनों गोलियां उसको नहीं लगी ड्रैगन को. बट ये जो कस्टार्ड ड्रैगन है इसने उसको पूरा का पूरा निगल लिया, इस पायरेट बेचारे को. अभी ये दारू निगल रहा था और ड्रैगन ने इसी को निगल लिया. गॉबल मीन्स होता है स्टूडेंट ईट समथिंग हर्रिडली एंड नॉइजली, यानी कि वो पूरा का पूरा इसको जो है वो खा गया चबा चबा के. वो ड्रैगन एवरी बिट में पूरा साबुत उसको पूरा एक ही बार में मुंह में डाल दिया. अभी ड्रैगन तो आप समझते ही हो कि वो हाउ डेंजरस इट कैन बी एंड हाउ बिग एन एनिमल इट इज. So it can easily eat an human being. There is no doubt about it. So now let's read the next stanza. Valinda embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did guide it around the dragon that ate the pirate. So basically now what happens after this incident? जब ड्रैगन ने उस पायरेट को खा गया तो बेलिंडा बहुत ज़्यादा खुश हो गई उससे और उसने उसको एम्ब्रेस कर लिया, उसको गले से लगा लिया. मस्टर्ड ने उसको लिकिंग किया, जैसे डॉग लोग खुश होने के बाद अपने ऑनर को लिकिंग करते हैं, चाटते हैं. एंड नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम. किसी ने कोई दुख कोई शोक नहीं मनाया जिस पायरेट को उसने खा लिया था, उस पायरेट के लिए. अभी तो पायरेट ड्रैगन का विक्टिम था ना, बट उस पायरेट बेचारे के लिए किसी ने कोई दुख नहीं मनाया. मोर्न मीन्स होता है दुख मनाना है स्टूडेंट. शोक मनाना आप माइंड में रखोगे. MOURN मोर्न मीन्स दुख मनाना होता है. IMORNING मॉर्निंग होते हैं. सो बेसिकली देखो यहाँ पे एक एनिमल ने एक ह्यूमन बीइंग को खा लिया, बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑफकोर्स गलत और सही से मतलब है. दैट ह्यूमन वॉज अ पायरेट एंड वो उसके इंटेंशंस भी अच्छे नहीं थे. वो इन लोगों के घर में लूटपाट करना चाहता था, वो इसको मार भी सकता था. एंड पायरेट ने 2 बुलेट्स भी फायर किए थे ड्रैगन के ऊपर, तो ड्रैगन ने जो उसको खा लिया तो कोई बुरा काम नहीं किया. यू कैन से दैट. इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गाइड इट. और इंक एंड ब्लिंक इस बात से काफ़ी खुश हुए और वो लोग जो है वो ड्रैगन के चारों ओर जो है वो सर्कुलर मोशन में जो है वो घूमे. ये आपके इंक और ब्लिंक. गाइडेड मीन्स होता है स्टूडेंट मूव इन अ सर्कुलर मोशन. डांस जनरली इस वर्ड के लिए यूज होता है. मूव और कॉज टू मूव रैपिडली इन अ सर्कल और स्पाइरल, यानी सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूमना. दैट्स व्हाट दिस वर्ड गाइडेड मीन्स टू से. तो किसके चारों तरफ गोल गोल घूम रहे थे? ड्रैगन के चारों तरफ जिसने पायरेट को खा लिया था. नाउ लेट्स रीड द फाइनल स्टैंजा. Presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. सो बेसिकली देखो अभी डॉग क्या बोल रहा है? डॉग जो है वो आपका ये बोल रहा है स्टूडेंट. फर्स्ट एंड ऑल मेनी स्टूडेंट समटाइम्स गेट कंफ्यूज कि जब एपिस्ट्रॉफी के बाद डी रहता है तो समटाइम्स इट इज हैड और समटाइम इट इज वुड. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. वहाँ पे सिचुएशन पे जो फिट बैठता है उसके अकॉर्डिंग चलता है. तो यहाँ पे वुड है, हैड नहीं. सो डॉग आपका बोल रहा है कि I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. So according to dog, he is saying that he got nervous. वो confused हो गया था और nervous हो गया था. The word flustered means to say student excited और confused. तो डॉग ये बोल रहा है कि वो excited हो गया था, वो confused हो गया था, इसीलिए. नहीं तो वो तो ड्रैगन ने जितनी बहादुरी दिखाई उसका 2 गुना बहादुरीपन दिखा सकता था. ऐसा डॉग ने बोला, मस्टर्ड ने. एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक. वी वुड हैव बीन देयर. We would have been 3 times as brave, we think, and Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. So basically, अभी डॉग की ये बात सुन के इंक और ब्लिंक यानी कैट और माउस भी बोल पड़े कि हम लोग तो 3 गुना ज़्यादा ब्रेव होते हैं. क्यों होते हो? कारण इसने नहीं बताया है.
एंड कस्टर्ड जो है वो इन सभी की बातों से अग्री करते हैं और वो बोलते हैं यस एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी. सो नाउ यू कैन गेस दैट ऑल दीज एनिमल्स आर ये लोग कितने बड़े फेकू थे. सब लोग सिर्फ अपने बारे में जो है लंबी लंबी हाँकते रहते थे और सच्चाई में ये लोग क्या थे ये तो हमें पता चल ही गया. नाउ लेट्स रीड द फाइनल स्टैंजा. Linda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. So प्रेजेंट में भी वही कंडीशन है जो कंडीशन पहले था, कुछ चेंज हुआ नहीं स्पाइडर अटैक के साथ. यानी कहने का यह पूरा का पूरा पोएम का यह मीनिंग है स्टूडेंट कि आप अच्छे से रह रहे हो, अपने घर में जेंटली रह रहे हो, हंसी खुशी रह रहे हो, ये अच्छी बात है कि आप नॉन वायलेंस का सहारा लेते हो. बट अल्टीमेटली जब आपका घर आपका देश खतरे में आ जाए तो उस समय आपका वायलेंस का सहारा लेना चाहिए. यानी आपके दो पहलू होने ही चाहिए. अगर एक घर में राम है तो वहीं पे लक्ष्मण का होना भी ज़रूरत है. सो बेसिकली स्टूडेंट हमारे दोनों तरह के फॉर्म हमारे साथ होने चाहिए. अभी जैसे डॉग माउस कैट ये लोग जेंटल एनिमल थे तो इनके साथ साथ उनके घर में ड्रैगन भी था जो सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि हम अपने ऊपर तो कंट्रोल कर सकते हैं बट दूसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते. कोई दूसरे अगर हमें नुकसान पहुंचाने आएगा तो हमें तो उसका जवाब देना ही पड़ेगा. सो नाउ यू कैन सी हियर कि this stanza is just a repeat of the first stanza. So situation is same again. Belinda lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon. wagon ये काट गाड़ी को बोलते हैं, अभी इसमें पिक नहीं है, मैंने आपको पहले दिखाया है. and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. So really truly again emphasize करने के लिए poet ने use किया हुआ है. So I hope student you would have find this poem of an interesting poem. Though this was a bit childish, but it was a good entertaining ballad poem which narrates a story. So now you should practice in your practice set the questions related to all lessons. Let's meet in the next video. Thanks all of you for watching.